औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम की तमाम तलबा और तालिबात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। As you know that we have discussed chapter number 3 variations, and in variations we have discussed exercise 3.2, 3.1 exercise हम complete कर चुके हैं और 3.2 का भी question number 1 से लेकर question number 6 तक हम easily solve कर चुके हैं. Hopefully that you haven't any query or any problem in question number 1 to question number 6. So we have discussed in this exercise 3.2, the direct proportion of variations or direct variation of the quantities. So we have to solve now question number 7 of exercise 3.2, and question number 7 is if y varies inversely. अब inverse की बात आ रही है. हम एक्सरसाइज 3.2 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो जब एक क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. इस रिलेशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे. और हम उसको क्या कह रहे थे, इस साइन से हम उसको शो कर रहे थे. वेरिएशंस 2 टाइप्स की हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स variation, direct proportion and inverse proportion, direct variation and inverse variation. So we have question number 7. इसमें हमने inversely इसकी फाइंड करनी है वैल्यू, और वो क्या होगी, यानी माइनस में चली जाएगी. यानी एक साइड से क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. So we have to find question number 7, that is if y varies inversely as x, यानी माइनस में इसकी वैल्यू चली जाएगी, and y is equal to 7, x is equal to 2. Then find y when x is equal to 126. वैल्यू हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल की फाइंड करनी होगी, वो होगा y. So first of all they have to tell us that y is directly proportional to 1 by x. यानी x की वैल्यू माइनस में लिखने की बजाय हम उसको फ्रैक्शन की सूरत में राइट कर देते हैं 1 by x. तो आपको पता है जब हम इस प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करते हैं तो हम किसी ना किसी कांस्टेंट को राइट करते हैं, दैट इज k, एंड विच वैल्यू इज नॉट विल बी 0 एट एनी कॉस्ट. y इज इक्वल टू k इंटू 1 by x, यानी क्या हो जाएगा k by x. यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू k और x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So we have to put the values of y and x in equation number 1, that is y is equal to k by x. The value of y is 7. This is equal to k by value of x is 2. x के जो वैल्यू है इस साइड पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे हम लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. 7 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू k. दिस इज इक्वल टू वी हैव टू गेट 14 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 14. So we have the value of constant. Now we have to find the value of y. अगर x की एक नई वैल्यू आपको दी जाए तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, we have to find the value of, as asked in the question, that find y. So we have question equation number 1, y is equal to k by x. So we have the value of k is 14 and the new value of x is 126. This is equal to y. So we have to simplify this fraction. 2 like as 2 7s are 14, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 7 1s are 7, 7 9s are 63. So we get the answer, that is 1 by 9. So we have get the value of y, that is y is equal to 1 by 9. This is our answer. You have 1 minute to write down the value of y and the
गिवन सॉल्व आउट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या था, इनवर्सली हमने फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू। हमें जो y था वो वेरीज कर रहा था इनवर्सली x के साथ, यानी x y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और x की वैल्यू वहां पे डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, 1/x की सूरत में हम उसको राइट कर देते हैं। प्रोपोर्शन तो हो रहा है लेकिन वो हो रहा है इनवर्सली, यानी डिक्रीजिंग में जा रही है उसकी। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। Amazing from this side. Within few seconds you have to look how I solve it, what you have write on the notebook. Now we are going to solve out the question number 8. Again a very simple question, and in this question again they have to ask find the proportion of inversely. If y, now this is in written form given, y is direct proportional, not sorry, inversely proportional by 1 or x. Y is equal to, the value of y is equal to 4, the value of x is equal to 3. Here they ask find x. If they give us the value of y is 24. So we have in the question that they give us y is inversely proportional to 1 over x. जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये क्या होगा, y आ जाएगा k into 1 by x, and that we have y is equal to k by x. This is equation number 1. Now we have to put these values in equation number 1. Equation number 1 we have y is equal to k by x. By putting values, the value of y is 4. Sorry, I write it down. The value of y is 4. This is equal to k by value of x is 3. 3 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जब आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3s are 12. So we have to find x. अब हमें इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास y 24 हो तो पहले हमारे पास y 4 था और हम k और x और वैल्यूज फाइंड कर रहे थे पुटिंग करने के लिए, लेकिन अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर उन्होंने जो हमें y की वैल्यू दी है वो पुट करें तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज 24 is equal to putting the value of k that is 12 by x. Hence हम क्या करेंगे कि 24 इस साइड पे क्या हमारे पास, और x को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स में। पहले हम क्या करते हैं, x को एक साइड पे लेके आते हैं ताकि हमें पता चले हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 24xy इज इक्वल टू 12। अब हम दोनों साइड्स पे 12 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो वी हैव टू राइट डिवाइड बोथ साइड्स बाय 12 एंड बाय 12। दिस 12 is cancel, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 2x is equal to 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x is equal to 1/2। दोनों साइड से 2 पे डिवाइड कर लें या इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x is equal to 1/2 एंड दैट इज आवर आंसर, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास आना था। सबसे पहले हमने क्या किया, इनवर्सली प्रोपोर्शन को राइट किया। राइट करने के बाद हमने क्या किया कि इसमें जो कॉन्स्टेंट था उसके साथ x को राइट किया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई। इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज पुट की जो हमें क्वेश्चन में पहले दी गई थी, वो फाइंड आउट करके हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब ये k की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा x की एक नई वैल्यू फाइंड करें जिसमें y जो है आपके पास 24 होना चाहिए। तो उसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। Within some seconds you have to write it. It's very hot today. I'm going to erase question number 8 and very quickly we will do question number 9. Hopefully
all of you have understand my method. And if you have any query, I am asking again and again. If you have any problem, any query, you will ask in comment box. I will inshallah reply your questions. Question number 9. If W is inversely proportional to 1 by Z and the value of W is equal to 5 and the value of Z is equal to 7. And the second thing they have to ask that find the value of W if the value of Z is 100 and we have two values of Z. सेकेंडली उन्होंने हमसे पूछा है कि W की वैल्यू फाइंड करें और जब Z की नई वैल्यू हम आपको देंगे वो क्या होगी 175/4. उसको हम बाद में देखते हैं. पहले हम अपने इस इनवर्स कांस्टेंट को देख लेते हैं. W is inversely proportional to 1 by Z and that is also written in this form. W is equal to K by Z as we have done in our question number 8 and question number 7. So we have to put the values of K and Z. Sorry, W and Z. The value of W is 5. The value of Z is 7. The value of W is 5. This is equal to K by 7. 7 यहाँ पे डिवाइड है. दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 7s are 35. This is equal to value of K. This is our equation number 1. Hence we have the value of K. We have to find W. We will use equation number 1. W is equal to K by Z. We have to find W, so putting the value of K, that is 35, and by putting the new value of Z, that is 175/4. और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो ये रकम उलट के क्या हो जाएगी 35 × 4/175. यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा जी 35 और 175 चूँकि एक ही नंबर के साथ डिवाइड हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम W राइट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो क्या होगा जी यहाँ पे W इज इक्वल टू 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं. 5 7s are 35, 5 3s are 15 और हमारे पास 2 बच गया. 5 5s are 25. अगेन ये कट जाएगा. 7 1s are 7, 7 5s are 35. So we have left with 4/5. 4 1s are 4/5. This is the value of W and actually this is our answer. A very simple and very easy question. That is question number 9. सबसे पहले हमने इसके इनवर्स प्रोपोर्शन को राइट किया. इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद उसके कांस्टेंट को राइट करने के बाद K की वैल्यू फाइंड की. इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए हमने W की और Z की एक नई वैल्यू राइट करके हमने W की न्यू वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में थी. होपफुली यू अंडरस्टैंड. Now we have to move on question number 10.